Amen. Let's get into the word. चलिए वचन में जाएंगे। Exodus chapter 40, please. निर्गमन का 40वां अध्याय। Exodus 40, and let's read from verse 1 onwards. निर्गमन का 40वां अध्याय, चलिए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। Then the Lord spoke to Moses, saying, verse 2. Yeah. फिर प्रभु यहोवा ने मूसा से कहा, On the first day of the first month, you shall set up the tabernacle of the tent of meeting. पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। Notice the time, the period that God told Moses to set up the tabernacle of और meeting. देखिए जो समय काल, जो सत्र के बारे में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मिलाप वाले तंबू को खड़ा करना, इस बारे में गौर करें। First day of the first month. पहले महीने के पहले दिन को, It was a new year. ये नया साल था। Come on, everybody say first month, write it down. First day of the month of the first day of the first month. That's a new year. देखिए पहले महीने के पहले दिन को, देखिए ये तो नया साल है। And God is saying, और परमेश्वर कह रहा on है, that day, उस दिन you will set up the tabernacle of meeting. मिलाप वाले तंबू को तू खड़ा करेगा। Point number 2, right? दूसरा मुद्दा लिख लीजिए। What was the tabernacle of meeting? और ये मिलाप वाला तंबू क्या होता The है? tabernacle of meeting was where God wanted to meet his people face to face. और मिलाप वाला तंबू वो जगह होती है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से आमने सामने मुलाकात करता है। God's desire is that he speak to people. परमेश्वर की तमन्ना ये है कि वो लोगों से बात करे। God's desire is that his people and he fellowship with one another. परमेश्वर की तमन्ना ये है कि उसके लोग और वो एक दूसरे का संगति करें। That was called the tabernacle of meeting. और देखिए यही तो कहलाता है मिलाप वाला तंबू। How many of you are understanding this? कि जो समझ रहे हैं इस वक्त। You see, that place was where the sacrifices were offered. और देखिए वही जगह वो जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता था। Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं इस समय? Of course, there were different places in that. और यकीन वहां पर अलग अलग ऐसे भाग होते थे। But that was the place where sacrifices, gifts were offered to God. लेकिन वही मुख्य जगह होती है जहां पर बलिदान भेंट अर्पण परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे। You cannot offer your gift, your sacrifice to God anywhere. और देखिए आप दूसरे कहीं भी किसी महज स्थान में आप परमेश्वर को कोई भेंट या बलिदान नहीं चढ़ा सकते थे। Only where God meets his people. सिर्फ वहीं पर जहां परमेश्वर उसके लोगों से मुलाकात करता है। So this is what God's command was. तो यही तो परमेश्वर का आज्ञा था। And God wants that every new year there should be a new beginning in your life. और देखिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक नए साल में आपके जिंदगी में एक नई शुरुआत होए। Come on now. Hello. चलिए भाई। Are you listening right आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? Every first day of the week there should be a new beginning in your life. और देखिए हर Come on. हफ्ते के पहले दिन जो है देखिए आपके जीवन में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। That's why we begin our week with worship. और इसलिए हम अपने हफ्ते की शुरुआत करते हैं आराधना के साथ। The first day of the week हफ्ते का पहला दिन we give it to God. हम परमेश्वर को देते हैं। And the whole week is और blessed. फिर पूरा हफ्ता जो है आशीषित हो जाता Come है। on, hallelujah. चलेगा हालेलुया। Many people don't understand that. बहुत सारे समझते नहीं इस बात Oh, को। मैं बहुत busy था, मेरा काम है, मेरा शाम है, ये है, वो है. No sir. नहीं जनाब। You need to meet God. जरूरी है कि आप परमेश्वर से मुलाकात करें। First day of the first month. Maybe God would have said today, first day of the first week of the week, I want to meet you. Tabernacle of meeting. It's a place where God meets his people. मिलाप वाला तंबू जहां पर परमेश्वर उसके लोगों से मुलाकात करता है। And look at the obedience of Moses. और मूसा का आज्ञा पालन देखें In verse 17. उसी 17वें वचन में। And it came to pass. और फिर ऐसा हुआ। Can you give it? Yes. It came to pass in the first month of the second year, meaning it took 1 year to build a tabernacle. और दूसरे शब्दों में देखिए पूरा साल भर लग गया उस मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए। But Moses did it on the first day of the first month. लेकिन देखते हैं कि मूसा ने पहले महीने के पहले दिन को खड़ा किया And he raised the tabernacle. और उसने मिलाप वाला तंबू खड़ा किया। I pray that our oasis also be raised up in Jesus' name. प्रार्थना करते कि हमारा ओएसिस भी खड़ा किया जाएगा यीशु के नाम में। You're not getting it, huh? आप नहीं समझते ना? Hallelujah. हालेलुया। God will do it. परमेश्वर करेगा। How? He will do it. वो जरूर करेगा। I'm not God anyway. Praise the Lord. क्या प्रभु स्तुति हो। See, Moses was obedient to the voice of God. देखिए मूसा परमेश्वर की आवाज के प्रति आज्ञाकारी था। He said, उसने कहा what God said, I will do it. जब परमेश्वर ने कहा मैं उसे करूंगा। And you and I need to be obedient to the voice of God. और देखिए आपको और हमें परमेश्वर की आवाज के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। He wants you to raise your tabernacle, your body. और देखिए वो चाहता है कि आप अपना मिलाप वाला तंबू जो आपका शरीर है उसे खड़ा करें। Come on, hallelujah, everybody. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Go to 1 Corinthians 3:16, please. चले जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 30 अध्याय 16वां वचन। What is the tabernacle today? और ये आज मिलाप वाला तंबू क्या है? Come on, can you bring it down? 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थियों उसका 30 अध्याय 16वां वचन। Do you not know that you are the temple, the tabernacle of God? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर वो मिलाप वाला तंबू हो? And the Spirit of God,
The Spirit of the living God dwells in you. और परमेश्वर का आत्मा, जीवित परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? So you are the tabernacle of God. तो आप खुद परमेश्वर का मिला वाला तंबू। God wants to raise your tabernacle up. परमेश्वर आपके मिला वाले तंबू को ऊंचा खड़ा करना चाहता है। Many times you have fallen in sin. देखिए बहुत बार क्या होता है, आप पाप में गिरते हैं। You have fallen in the things of the world. आप दुनिया की चीजों में फंसते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Not necessarily पाप, लेकिन दुनियादारी में गिरते हैं। You know, इसकी मदद कर, उसकी मदद कर। जब तुम्हारा समय आता है कोई नहीं मदद करता सिवाय परमेश्वर के। मैं इसको जानता हूं, उसको जानता हूं, फला फलाने को जानता हूं। अरे जब तेरा कोई हॉस्पिटल में रहता है कोई नहीं आता, मक्खी भी नहीं आती है, तेरे ही लोग आते हैं। फिर तेरी माँ बेचारी खड़ी रहती है रात भर, तेरा बाप भी घूमते रहता है बेचारा हॉस्पिटल के बाहर। कहां गए तेरे बड़े बड़े लोग? और फिर एक ही परमेश्वर खड़ा रहता है तेरे साथ। डॉक्टर कहता है इसे उठा के लेके जाओ, खत्म हो गया, लेकिन खुदा उठा देता है उससे लोगों को। Are you listening? आप सुन रहे हैं? So believe in God. तो परमेश्वर में विश्वास करें। So God wants you to understand that your body is the tabernacle of God. तो परमेश्वर चाहता है कि आप समझें कि आपका शरीर परमेश्वर का मिला वाला तंबू So है। you cannot live in immorality. तो आप गंदे कामों में अपना जीवन नहीं जी सकते। You cannot live say बोलो चलो मेरा प्रॉब्लम है, मारो विस्की चिस्की, you know, मारो, और बाद में हिचकी आती है, you know. Your life goes for a toss. आपकी जिंदगी बिगड़ जाती है। दोस्तों के साथ पार्टी शाड़ी लगाओ, मजा आता है उस टाइम, लेकिन बाद में लिवर खराब, ये खराब, ऐसा। चलो जाएंगे घूमने को, और ऐसी ऐसी जगह जब जाते हो आपके शरीर को किसी दूसरे से जोड़ देते हो, शरीर को बीमारियां आती हैं। I want to tell you, young people listen. नौजवान लोगों सुनिए, You go for party, you smoke something. आप पार्टी के लिए जाते हैं, जाकर वहां पे कुछ धूम्रपान करते हैं। Many young boys today, I've seen it. Their children, their mothers, fathers are crying. बहुत सारे नौजवान लोगों को आज देखे, उनके माता पिता रो रहे हैं। They want to leave that, but now it has entered their body. वो छोटा तो चाहते हैं, लेकिन अब उनके शरीर में समा चुका है। It cannot come out. वो आसानी से बाहर नहीं आ But सकता। do you know something? लेकिन आप जानते हैं क्या? There is one way it can come out. एक तरीका है बाहर निकालने का, It is through fasting. वो उपवास के जरिए। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? सर मैं बोल रहा हूं, सुनिए इस वक्त। अब खा पी के उस चीज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम शरीर को खिला रहे हो, शरीर को खिला रहे हो, शरीर को खिला रहे हो। शरीर बोलता है ये ठीक है, लेकिन मुझे वो चाहिए। लेकिन जब शरीर को मार देते हो ना आप, वो दारू निकल जाएगी तुम्हारे सिस्टम से। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? वो गांजा, वो जो भी है, वो निकल जाएगा तेरे शरीर से। This is a word God is giving somebody. I don't know whom I'm speaking to. देखिए वो वचन है जो परमेश्वर किसी से वो तंबाकू घसते हो, सब निकल जाएगा तेरे शरीर से। Try it out. आजमा So कर God देखिए। wants to raise your body. This is the will of God. God wants to raise your tabernacle up. परमेश्वर आपके शरीर को देके खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपके मिलाप वाले तंबू को खड़ा करना चाहता है। यही परमेश्वर की इच्छा है। Sometimes people get involved in sexual immorality. That bond is so strong. और कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है अवैध संबंध में जो फंस जाते हैं, और वो बंधन जो है बहुत मजबूत होता है। How to break that? कैसे तोड़ा जा सकता है? Because the body wants that. क्योंकि शरीर वो चाहता है। It's through fasting and prayer. ये उपवास और प्रार्थना के जरिए होता है। Pornography, oh, it enters you. अश्लील चीजें वो आपके अंदर समा जाती हैं। How do you break it? कैसे आप तोड़ सकते हैं? Through fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना के जरिए। अपने पड़ोसी से कहो, God wants to raise your tabernacle. अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर आपके मिलाप वाले तंबू को खड़ा करना चाहता Come है। on, hallelujah. हालेलुया। Lift your voice and say hallelujah. अपनी आवाज ऊंचा उठा करके हालेलुया। You see, church, आप देखते कलीसिया, this is what God wants you to do. यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। Then you become the place where God can meet you. फिर आप वो स्थान बनते हैं जहां परमेश्वर आपसे मुलाकात कर सकता है। Now listen to me. अब सुनिए हमारी। In the Old Testament, पुराने नियम में there were two types of altars. Write it down. दो तरह की वेदियां हुआ करती थी, लिख लीजिए। सब जो बोलिए वेदियां। सब लोग कहें वेदियां। बहुत ही बड़ी चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो इस वक्त। ओके, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज बोल रहा हूं। If you understand this, अगर आप इसे समझेंगे, you can change your destiny. ये आपके विधान को बदल देगा। अरे नहीं समझे सर, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। In the Old Testament, there were two types of altars. देखिए पुराने नियम में दो प्रकार की वेदियां हुआ करती There थी। was a godly altar और देखिए एक तो परमेश्वर रूपी वेदी and there was an evil altar. और दूसरा शैतानी वेदियां। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? An evil altar and a godly altar. और देखिए परमेश्वर रूपी वेदी और फिर शैतानी वेदी। Hello, are you listening right now? ये तो सुन रहे हैं। And an evil altar was a place where demonic powers would come and mingle among the people. और देखिए शैतानी वेदियां वो जगह होती थी जहां पर दुष्ट शक्तियां आकर लोगों के साथ घुल मिल जाती थी। They used to worship the devil. वे शैतान की आराधना किया Even करते थे। today there are satanic churches. आज भी ऐसे शैतानी ऐसे आराधनालय मिलेंगे। One big woman
who sings. Her name starts with B. I don't want to take her name. She's a pop artist. All young boys are crazy after her. She clearly says, I sold my soul to the devil. उससे साफ तौर पे ऐसा कहा कि मैंने अपने प्राण को जो है, अपनी आत्मा जो है शैतान को बेच दिया. शैतान को बेच दिया. And people are seeing that. लोग देखते हो Evil altars. शैतानी वेदियां. These are examples of evil altars where they lead people into sin, lead people into drugs, lead people into immorality. Such evil altars are there in today's society. How many of you listening right now? और ये है शैतानी वेदियां जहां पर वे लोगों की अगुवाई करती हैं गंदे कामों की और ड्रग्स की और ऐसे बुरे बुरे चीजों की और देखिए इस तरह की शैतानी वेदियां आज भी दुनिया में हैं. The good news is ये अच्छी खबर ये God will raise up you as a godly altar. परमेश्वर आपको खड़ा करेगा परमेश्वर रूपी वेदी के रूप में. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? I want to show you some facts about altars now. Write it down. My third point. कुछ आपको बताना चाहते हैं सच्चाइयां जो हैं वेदियों के बारे में लिख लीजिएगा. Every altar, write it down. देखिए हर एक वेदी has a priest in charge of it. देखिए हर एक वेदी पर जो है Every याजक altar को, has a priest in charge of it. और देखिए याजक को जो है नियंत्रण रखने के लिए ठहराया जाता था. You are the altar. देखिए आप है वेदी And you are the royal priesthood. और आप ही राजसी याजक हैं. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? तुम्हारा घर जो है, तुम्हारे घर में जो प्रार्थना आराधना होती है, तुम्हारे बच्चे प्रार्थना नहीं करते, तुम्हारे कोई भी प्रार्थना नहीं करते, तो तुम निराश नहीं होने. तुमको उस वेदी को बनाना है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस. अरे वो लोग प्रार्थना नहीं करते, मैं क्या करूं? उन्होंने प्रार्थना नहीं करते. तुमको वो दाम चुकाना पड़ेगा. हेलो हेलो हेलो. सुनिए क्योंकि उस शैतानी ताकत को जो तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे घर में मंडराती है, उसको तुमको तोड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से. सिर्फ सुनना काफी नहीं है. हेलो, आर यू विथ मी? क्या साथ में है इस वक्त? द सेकंड थिंग, दूसरी चीज, एवरी ऑल्टर डिमांड्स कंटिन्यूअस सैक्रिफाइस. देखिए हर एक वेदी जो है लगातार जो है बलिदान की मांग करता रहता है. हाउ मेनी ऑफ यू फॉलोइंग मी चर्च? ये तो समझ रहे हैं. एवरी ऑल्टर, हर एक वेदी, whether it is evil altar or it is godly altar, चाहे वो शैतानी वेदी हो या परमेश्वर रूपी वेदी हो. that's why इसलिए you must, the Bible says, continually offering the sacrifice of praise. इसलिए बाइबल ऐसा कहते हैं कि लगातार जो है स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाते रहो. कितने लोग सुन रहे हैं? ऐसा क्यों है पास्टर जी कि हम लोग सेवा तो कर सकते हैं लेकिन प्रार्थना करने में बहुत मुश्किल लगता है? कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम गरीबों को खाना बांट सकते हैं, ए ला रहे हंडी ला रहे, ए ला रहे वो ला रहे, सुबह से शाम तक हम लोग कुछ कर सकते हैं, झाड़ू मार ये मार, लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है तो शरीर अकड़ जाता है, नींद आने लग जाती है, कुछ कुछ होने लगता है, कोई आ जाता है. माय फ्रेंड, शैतान जानता है कि अगर तू स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाएगा तो तुम्हारे घर में वो शैतानी ताकत टूट जाएगी. टुडे लिसन केयरफुली. आज ध्यान से सुनिएगा. हाँ, मैं आपको बोलूं ना, चल थोड़ा मॉल में थोड़ा झाड़ू मारना है, आप एक नहीं 2 झाड़ू उठाएंगे. लेकिन मैं बोलूं ना आपको, चलो 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, तो बोलेंगे ठीक है ये लो 500 रुपए मैं जा रहा हूं. Satan knows शैतान जानता है that if this person prays, कि अगर ये व्यक्ति प्रार्थना करने if लगे, this person worships, ये व्यक्ति आराधना करने लगे. चर्च में लोग हमेशा वर्शिप के बाद आते हैं. हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं इस बार? बोले नहीं, ट्रेन का टायर पंचर हुआ. अच्छा, तेरे ट्रेन में टायर? अच्छा. नहीं, बोले रिक्शा पलटी हो गया. कुछ भी बहाने देते हैं और वो वर्ड के टाइम आता है. लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर वो आराधना स्तुति के समय आ जाते थे कि वो शैतानी वेदी उनके जो घर में इतने साल से है वो टूट जाती थी. रिसीव कीजिए इस वर्ड को, ग्रहण कर लीजिए इस वचन को. आई एम टेलिंग यू सर. कह रहे हैं आपसे. So every altar demands sacrifice. So for their altar, they sacrifice pigeons, hens, cocks. एक दारू वेदी जो चढ़ाते है हैं. मांग करती है बलिदान की. तो देखिए शैतानी वेदियों पर जो है हंसो मत, सच बोल रहा कबूतरों हूं को मैं. चढ़ाया जाता है, मुर्गियों को Hello, चढ़ाया hello, जाता है, hello, शराब चढ़ाया hello. जाता है. One day I was preaching like this. और एक दिन इस तरह से प्रचार कर रहे तो थे छोटी सभा है. And one day I was preaching, one woman came. और एक औरत आई So we were laying hands और हाथ रख रहे थे हम. and I said, I just touched her. The demon spoke. और बस उनको छुआ तो दूसरा आत्मा बोल उठी. हाथ मत लगा. He's talking like a man. वो आदमी जिस आवाज में बोलने लगा. Lady talking like a man. एक औरत लेकिन आदमी की आवाज में बोल रही. मैं बोला ये क्या चीज है यार, आदमी जैसे बात कर रही है. Then I said, come out devil. और इन्होंने कहा शैतान तू भागा. Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? He's saying, मुझे जॉनी वॉकर, मैंने हमेशा बोलता ना सरमन में, सुना है ना? हेलो सर, तुमको मालूम नहीं डीमन लोग हैं. मुझे जॉनी वॉकर की 2 बॉटल चाहिए और एक डुक्कर चाहिए.
शी नहीं, सच बोल रहा हूं. Okay, what? No, it's a खिचड़ी pot. Listen to me. What? Really? सचमुच. और उसके बाजू में जो लोग लाए थे, पास्टर आम्ही गरीब आहोत, कुठून आणायची जॉनी वॉकर? हॅलो, हसू नका. ए बाबा, हसो मत. कुठून आणायचं? आम्ही गरीब आहोत पास्टर, आम्ही गरीब लोक रस्त्यावर कहाँ से झाडू लाए मारतो. कुठून आणायचे पास्टर? काहीतरी करा. My heart broke, man. इनका दिल टूट गया. For you, you can laugh and it's a fun talk. देखिए आपके लिए भले आप They're हंस सकते हैं. sweeping the road. They have some workers there. कोई भी काम छोटा नहीं होता. Hello, I respect them. उनका सम्मान करते हैं. But where they will get this money from? लेकिन कहां से उनको पैसे मिलेंगे? Nice honor. And नहीं she's जानता. carrying a baby. That woman is carrying a baby. और वो महिला जो है बच्चा भी और लिए. वो दुष्ट आत्मा, that thing is saying, इस बच्चे को मैं मार देगा. I will kill this infant. और इस शिशु को मैं मार दूंगा. The mother is crying. मार हो रही है. The mother-in-law is crying. और जो सासू माँ है वो भी रो रही है. Hello. This is the situation. ये है हालात. They see their sacrifices. दारू. Hello, are you listening, church? सुन रहे हो? दारू है, ये है, वो है. The sacrifice. And some people give it. और कुछ लोग देते हैं. रास्ते पे रखते हैं. हेलो, दारू. कोई बेवड़ा वो भी पी लेता है. बोले फोकट की मिली मार. I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कलीसिया. रास्ते के चार रास्ते. हेलो, ये सब कहानी कथा नहीं. ये अमेरिका, हम लोग धन्यवाद दो प्रभु का, हम लोग अमेरिकन नहीं है. हम लोग इस बातों को जानते हैं. Oh, nothing happens. Listen, hey, you fellow, white skin fellow. You don't understand this. We Indians understand this. हम भारतीय लोग समझते हैं इस बात को. Come on, hallelujah. हम भारतीय थोड़े से थोड़े सादे लोग हैं, लेकिन हम इन चीज से हम जानते हैं. Come on, praise the Lord. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? Yes. So you know these things are true. तो आप जानते हैं इन चीजों को कि ये सच है. So these are the sacrifices that they offer for the devil. तो ये वो सब बलिदान और कुर्बानियां हैं जो वो शैतान को चढ़ाते हैं. Stronger the altar, the evil altar, stronger the sacrifices are required. और जितना मजबूत या कहे जितने ऊंचे दर्जे का जो शैतानी वेदी है, उतना ही ज्यादा उसे बलिदान की भी जरूरत पड़ेगी. कोई वेदी पर जो है मुर्गी उर्गी नहीं चलता. वो बोले एक बकरा ले गया. बकरा? बोले 1 लाख का बकरा आता है. This is hello, are you understanding me? आप समझ रहे हैं इस वक्त? सर, कोई लोग अपना खून चढ़ाते हैं. ये चाहिए, वो चाहिए. You see in the papers. आप देखेंगे पेपर में. छुपा हुआ धन पाने के लिए they offer human sacrifice. पढ़ा आपने? This they think that I'm telling you. बता रहे हैं आपको. As a pastor over so many years, I have met certain people. How they have been deceived by all these things. जैसे इन चीजों के जरिए उनको भरमाया गया है. So every altar requires sacrifice. So this is an altar. तो देखिए हर एक वेदी के लिए देखिए बलिदान की जरूरत पड़ती है. तो So ये if एक this वेदी. altar has to function, और अगर इस वेदी को काम करना है, सब जो बोले इस वेदी को काम करना है, तो उस पर बलिदान चढ़ाना जरूरी है. तुम ऐसे नहीं घूम सकते. बोले हालेलुया, सुबह हालेलुया, रात को सोते वक्त हालेलुया. मक्खी भी नहीं आएगी तेरी वेदी पर. सो बलिदान चढ़ाना जरूरी है. किस प्रकार का बलिदान? स्तुति का बलिदान. बोले मेरा मन नहीं होता प्रभु की स्तुति करना. उसी को तो बलिदान कहते हैं. चर्च में आने का मन नहीं करता है. अरे उसी को तो बलिदान कहते हैं. कम ऑन नाउ. चलिए अब देने में बोले क्या दूं यार, कल मॉल जाना है. No, hello. Why should I give to God? I can enjoy it on myself. That is called a sacrifice. क्यों मैं परमेश्वर आज जब मैं दूं, मैं खुद का इसका मजा ले सकता. यही तो है बलिदान. Why should I give my tithe? क्यों मैं अपना दशमांश दूं? Why? क्यों? लोग कुछ बहाना बनाते हैं. कुछ टीचिंग मिला उनको, मिला, बोला टाइथ नहीं. अरे ऐसी टीचिंग की तो जरूरत है मुझे. फिर ढूंढते हैं प्रार्थना नहीं करेगा तो भी मिरेकल आएगा. ऐसी टीचिंग चाहिए हम लोगों को. बलिदान, जोर से बोलिए बलिदान. So church, every altar requires a sacrifice. So today we don't have to offer hens, we don't have to offer pigeons, we have to offer sacrifices of praise and worship. कि आज देखिए हमें जो है मुर्गी या फिर कबूतर ये सब चढ़ाने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है. We don't have to offer Johnny Walker also. देखिए जॉनी वॉकर को भी हमें चढ़ाने की जरूरत नहीं. May Johnny be saved. वो जॉनी उद्धार पा ले. Hallelujah.
Are you listening, church? सुन रहे कलीसिया? So what do? You offer your sacrifice. You offer your fasting. You offer your prayers to the Lord. तो आपको क्या करना है? आप परमेश्वर को अपनी स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, प्रार्थनाएं चढ़ाएं, उपवास का बलिदान चढ़ाएं. Write it down. लिख लीजिए. An altar is a place where God meets man. और देखिए वेदी वो जगह होती है जहां पर परमेश्वर इंसान से मुलाकात करता है. The fourth one, write it down. चौथा, लिख An लीजिए. altar is a place where covenants are formed. Everyone say covenants are formed. और देखिए वेदियां वो जगह होती है जहां पर वाचाएं बांधी जाती है. सब जो बोले वाचाएं बांधी जाती है. नहीं, अभी जो मैं बोलने वाला हूं ना, तुम हैरान हो जाओगे. सब जो बोले वाचाएं बांधी जाती है. अगर तुम एक स्थान पर, चाहे वो चर्च हो या आपका घर हो, आप रोज परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और जब परमेश्वर की उपस्थिति गाढ़ी होती है, इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग. जब परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही गाढ़ी और भारी होती जाती है, एट दैट टाइम यू से, उस समय आप कहें, गॉड, परमेश्वर, आई एम गोइंग टू माई इंटरव्यू. मैं अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं. इफ यू गिव मी दिस इंटरव्यू, अगर आप मुझे इफ आई पास, आप I मुझे will काम give नहीं you my half of my salary. तो मैं अपनी आधी तनख्वाह आपको दूंगा. You know what? आप जानते हैं क्या? It will happen for you. ये होगा आपके लिए. Why, you know? आप जानते हैं क्यों? Because that place covenants are formed. क्योंकि उस जगह पर वाचाएं अभी बांधी गई. Come on now, hallelujah. Samson, come on now. Samuel's mother, शमूएल की माँ, she was at the altar of the tabernacle. She was at the tabernacle. और वो मिलाप वाले तंबू में आई. And she said, उसने कहा, I have no son, I have no child. मुझे कोई बच्चा नहीं है. But if you give me a child, लेकिन अगर तू मुझे एक बच्चा I है, will give him back to you. मैं तुझे वापस दे दूंगी. ऐसा मत बोलो, बहुत बड़ा चीज है. कुछ भी मुंह में आया बक दिया बोलता ना, ऐसा नहीं, मत बोलो, कुछ भी मत बोलो. उसको बेटा मिला, लेकिन वो बेटे को 4 या 5 साल में उसको वहां पर वो छोड़ के चली जाती है. मैंने लास्ट टाइम प्रीच किया था, क्या मां पर बीता होगा वो सिर्फ मां ही जानती है. हम लोग पुरुष इतना है, थोड़ा इमोशनल है हम लोग, बट मां जो होती है ना, अपने बेटे को छोड़कर वो चली जाती है. And because of that, she has many other children then. और उसके वजह से देखिए बाद में उसको कई सारे बच्चे भी हुए. But it's very difficult. बहुत मुश्किल था. So when you speak in the presence of God, be careful what you speak. Don't speak nonsense. तो जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में Covenants. बोलते हैं तो सावधान रहना कि आप बोल रहे हैं, कुछ भी बेवकूफी की बात मत करो. Now let's come to evil altar. चलिए आते हैं शैतानी वेदी के पास. One day, one family came to me from Mizoram. और एक दिन ऐसा हुआ कि एक परिवार इनसे मिलने आया मिजोरम से. There were 3-4 girls, 3-4 लड़कियां थी, beautiful looking girls. बहुत खूबसूरत सी दिख रही थी. They had one problem. लेकिन उनमें एक समस्या थी. Says Pastor Michael. वे कहने लगे, पासवान माइकल, None of us in our family, now they were senior in age. Hello. They had passed the age and only one girl was there in a marriageable age. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? This is none in our family get married. उन्हें बताया कि हमारे परिवार में किसी की भी शादी नहीं हुई. I was praying over them. And the Lord showed me. और फिर प्रभु ने दिखाया. I said, your uncle was a witch doctor. ने कहा कि तुम्हारे अंकल जो है तांत्रिक हुआ करते थे. All of them laid down. और सभी ने घुटने टेक दिए. Saying, Pastor, nobody knows this. वो कहने लगी, पासवान जी कोई नहीं जानता इस बात को. Nobody knows this. कोई नहीं जानता इस बात He को. said, uncle was a fearsome witch doctor in our area. और हमारे जो अंकल जो हमारे एरिया में एकदम भयानक तांत्रिक हुआ करते He थे. says, when he had a daughter, जब उनको बेटी हुई, I will not tell you now what, आगे नहीं बताएंगे. he seems he would do a ritual and he said to that demon which appeared, he said, all the daughters, all the women in my house, I marry them to you. उसने कहा कि Oh, you didn't understand it. दुष्ट आत्मा से उसने कहा कि हमारे घर में की सारी जो लड़कियां हैं है और जो आने वाले हैं, जो हैं और जो आने वाली उन मैं सभी की शादी. तुझे इनको तेरे साथ जोड़ देता हूं. He became number 1 in that whole area. He had land, he had property. लोग उसके नाम से डरते थे. He offered. उसने चढ़ाया. उसकी बेटी कुंवारी रह गई. But now here's the thing. लेकिन अब सुनिएगा, Now that altar और वो विधि was exercising power over all the women. और वो जो है हक जता था सारी महिलाओं पर. Oh, you didn't understand. This is how it is. ऐसे होता है. This is how it is. Many people struggle because of this. देखिए बहुत सारे लोग जो इसके वजह से संघर्ष करते You हैं. see Jacob, आप देखिए याकूब, he tells God, वो परमेश्वर से कहता है, he says, God, कहता है परमेश्वर I'm running away. मैं भाग रहा हूं.
I'm running from my brother Esau. मैं अपने भाई एसाव से बच के भाग रहा हूँ, He's trying to kill me. वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा But है, if you be with me, लेकिन अगर तू मेरे साथ रहे, all my life I will give you my 10% to you. अपने पूरे जीवन भर में अपना दशमांश को देता रहूंगा। At that time, he didn't have anything. उसके पास कुछ नहीं था, But he gives it anyway. लेकिन फिर भी वो देता है। Come on now. And from that day onwards, और फिर उस दिन के बाद Jacob's life starts turning around. याकूब की जिंदगी जो बदलने लग गई, Oh, you didn't understand वो आप नहीं it. समझे इसे। This is a very powerful thing. बहुत So you शक्तिशाली see, चीज़ है। an altar is a place of covenant तो आप देखते हैं, वेदी वो जगह होती है जहां पर वाचाएं बांधी where जाती है, prayers are offered, declarations. You just can't get up and say, in the name of Jesus, da 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 da. No, sir. You need to have a covenant relationship with God. देखिए आपके पास Everyone say देखिए परमेश्वर covenant के साथ relationship. वाचा का संबंध होना चाहिए। कोई भी उठ के नहीं बोल सकता मैं परमेश्वर की संत नहीं रे नहीं नहीं नहीं। You see how it works. आप देखते कैसे काम करता है। हो I said praise the Lord. And whenever you come near the altar, my fifth point, ready पांचवा down. मुद्दा लिख लीजिए। Whenever you come near the altar, जब कभी आप वेदी के पास आते हैं, there will be a voice that will go from the altar on behalf of you. और देखिए उस वेदी में से देखिए एक आवाज होगी जो आपके पक्ष में आगे जाएगी। Hello. There will be a voice ऐसी एक आवाज होगी that will speak from it on behalf of you or against you. जो उसमें से बोलेगी आपके पक्ष में या फिर आपके खिलाफ। When Balaam, the witch doctor, उसने वो 7 बैल चढ़ाए, तो एक आवाज बोली वहां से। Hello. It's very, very powerful. ये बहुत ही ज्यादा I सामर्थ्य। don't want to go deep in this because you're not ready for it. उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आप लोग तैयार नहीं हैं अभी। Altars are powerful वेदियां बहुत सामर्थ्यशाली होती हैं and they can affect not only the generation that is present, but the generations to come. और वो असर डाल सकती है सिर्फ अभी के वर्तमान पीढ़ी में ही नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी पर भी। कितने लोग सुन रहे हैं? जो तुम्हारे बाप दादाओं ने किया, लफड़े किए, वो अभी भी तुम पर हावी हो रहे हैं। वो आज यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है हमें। Praise the Lord. I said praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। बोला ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर आप समझ नहीं रहे हो, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। But there are good altars. लेकिन ऐसी अच्छी वेदियां भी हैं। Today, what you're doing, so बोले, many people they worship God only for the present. देखिए बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं सिर्फ वर्तमान में ही। बोले मेरा बच्चा आना चाहिए, मेरा ये मुर्गी, मेरा ये वो बस नहीं सर। When you worship God, देखिए जब आप परमेश्वर की आराधना what करते is हैं, to come will also be blessed because of you. आपके वजह से जो चीज आने वाले हैं वो भी आशीषित होंगे। Praise the Lord. For many years I did not see anything. देखिए कई सालों से कुछ नहीं देखा था। नहीं समझ रहे आप? मैं सैटरडे को जाता था, सुबह जाता था, अंदर एक रूम के अंदर जाता था, लॉक करता था अपने आप को, और संडे रविवार के दिन बाहर निकलता था। अब ऐसा मत करो, हर एक आदमी का एक बुलाहट होती है, सब लोग नहीं कर सकते ऐसा। तो मुझे 2-3 दिन छुट्टी मिलती थी तो मैं अंदर जाता था, लोग पूछते थे अरे तू बाहर गांव गया क्या? बोला हाँ मैं बाहर गांव गया। ओके, दोस्त लोग, कोई दोस्त नहीं था, कोई कुछ नहीं। I used to spend hours in the presence of God. जाके घंटों वहां परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते थे। Now here's the thing, church. अब ध्यान से सुनिए। Immediately I did not see the results. और तुरंत ही इनको नतीजे दिखने नहीं लगे। But after a few years, लेकिन कुछ साल के बाद things started happening in my life. चीजें होने लगी इनके जीवन में। Things started happening in the city, in the places. Are you listening right now? सुन रहे हैं इस समय? Many people want immediate results. देखिए बहुतों को जो है तुरंत ही झटपट का बोला पैसा डाला, ड्रिंक बाहर आ गया। बाजू वाले को बोलो God is not vending machine. 1 रुपया डाल, टॉफी बाहर आ गया। आजकल 1 रुपये में टॉफी भी नहीं आती है। Many people are like that. ऐसे ही। But what you're doing today, लेकिन जो आज आप कर रहे it हैं will start impacting your life. ये आपकी जिंदगी पर असर डालने लगेगी। It will start impacting your life. ये आपकी जिंदगी पर असर डालने कितने लोग लगेगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? So today, so these are, just give you a short example. Please forgive me. I can't go deep because you're not built for it now, of you. Evil altars and godly altars. शैतानी वेदियां और परमेश्वर की वेदी। I'll show you one evil altar. I'll show you one godly altar now. Now there is a thing, how many altars, even there are godly altars, it does not work. I will tell you why. देखिए बहुत सारी वेदियां जो यहाँ तक कि परमेश्वर की वेदी भी काम नहीं कर पाती, क्यों बताते हैं? Go to Matthew chapter 5. चलिए निकाले मत्ती का 5वां अध्याय। Now this is important. Let me just bring it down a little bit. थोड़ा कड़क हो गया. Matthew chapter 5. It's a little heavy. People are,
रात को नींद नहीं आएगी. Something if I tell you. No, really, I'll tell you. Yesterday, I wanted to, I was feeling the freedom to speak. You never speak beyond the atmosphere. Matthew chapter 5, मत्ती का 5वां अध्याय verse 23. 23वां वचन. Many of you godly altars are not working today because of one reason, I'll tell you. Therefore, if you bring your gift to the altar, इसलिए अगर तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, come on now. If you bring your gift to the altar and remember your brother has something against you, your sister has something against you, what it says is you leave, verse 24 please. और वहां You मुझे याद leave है, your gift there before the altar. बाजू वाले को बोलो गिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो आदमी लाता है उसमें प्रॉब्लम है. So leave your gift there, don't take it with you, तो अपना भेंट वहीं छोड़ दे and go and be reconciled and then offer your gift. तो ये बात सुनिए इस वक्त मैं क्या बोल रहा हूं. जब भी आप बलिदान करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, देते हैं, तो फर्स्ट थिंग आपके शरीर, आपके हृदय में देखना है कि मेरे अंदर तो कोई गुस्सा, नफरत तो नहीं है, किसी के प्रति कड़वाहट. लेकिन बोले इसका मुंह नहीं देगी और इसका तो मैं जाऊंगा ही नहीं कभी. खलास, तेरी भेंट गए फिर काम के. तेरी भेंट कचरा हो गई, कचरा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? That's why many Christians, they are praying, they are fasting, they are giving, they don't see any change in their lives. और इसी वजह से बहुत सारे मसीह प्रार्थना करते हैं, देखिए उपवास करते हैं, देते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं देख पाते. Hello, सुनिए, I prayed, मैंने प्रार्थना की, I fasted, मैंने उपवास भी किया, I gave to God, मैंने परमेश्वर को दिया भी, I offered the gifts, मैंने भेंट अर्पण चढ़ाए, but that it has no meaning before God. लेकिन परमेश्वर के सामने उसका कोई भी मायने नहीं है. Today, आज make sure पक्का कर लीजिए that you say, Lord, कि आप कहें प्रभु, मैं नहीं बोल रहा हूं कि किसी के जाके पैर छुओ. No, I'm not saying that. ऐसा नहीं कह रहे. You should just release them. Tell your neighbor, I release them. बस आप उन्हें मुक्त कर दीजिए, अपने बड़ों से कहें उन्हें मुक्त करें, जाने जाके दीजिए. उनके बारे में बात नहीं करना है. बोले उसने ऐसा किया, वो चोर है, वो चोर का बाप है, all that. ऐसा नहीं बोलना है. छोड़ दो उनको. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes. Sometimes it's our very own people. कभी कभी देखिए हमारे सगे लोग होते हैं, हमारे सगे लोग हमारे घर में सोने, एक बाजू में बांधना. Praise the Lord. भाई भाई ज्यादा दूर नहीं, भाई खुद की बहन, जाने दो अभी. So this is how it is. ऐसे ही होता है. एक दूसरे के साथ हम लोग कभी कभी खेले हैं, साथ में खाना खाए, कम ऑन, गाने गाए, उनके प्रति लफड़ा होता है कि नहीं? ज्यादा लफड़े उधर ही होते हैं. So that's why your gift, your giving, your prayer, your worship has no meaning. इसी वजह से देखिए आपका भेंट अर्पण देना, आपकी प्रार्थना करना, आराधना करना, इसका कोई मतलब या कोई मायने नहीं रहता. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Hallelujah. हालेलुया. Somebody say I'm receiving this right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं इसे. Okay, now quickly let's go and finish it off right now. जल्दी से आगे बढ़ते हुए समाप्त करेंगे. Now there are certain, we are going to deal with evil altars. Tell your neighbor, we're going to deal with evil altars. अपने पड़ोस से कहें हम शैतानी विधियों से निपटने जा रहे हैं. Yeah. Now, please now, okay, we'll talk about godly altars next time. But today we are going to deal with evil altars. Everyone say evil altars. सभी लोग कहें शैतानी विधियों से. ऐसी कोई वेदियां तुम्हारे अगेंस्ट में होती हैं. सुनिए इस वक्त, जो गरीबी की वेदियां होती हैं. हेलो, अगर आपका पैसा किधर चढ़ाया गया है, आपका पैसा चढ़ाया गया, वो दुष्ट आत्मा सोचती है कि तुम्हारा जो भी है उसका है. नहीं समझ रहा आप? तो ये बहुत जरूरी है कि that evil altars break over your life. तो जरूरी है कि वो शैतानी वेदियां आपकी जिंदगी में से तोड़ी जाए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. How do you do that? कैसे आप ये करते हैं? Prophetic declaration. भविष्यवक्ताई घोषणाएं. बाजू वाले को बोलो अपना मुंह खोलकर वर्ड ऑफ गॉड बोलना है. वचन बोलना है. जोर से बोले वचन बोलना है. वचन को बोलना है. जोर से बोले. Now those who are Christians will understand. I'm trying to make it easy for you. Everyone say speak the word. सभी लोग कहें वचन को बोलो. Confess the word. वचन का अंगीकार करो. So today I'm teaching you. You need to confess the word. Speak the word. आपको सिखा रहे हैं देखिए आपका वचन का अंगीकार करना, वचन को बोलना है. और जब आप आज ऐसा सुनिए, many of you are going to get very frightening dreams. और देखिए आप में से बहुतों को देखिए डरावने सपने आएंगे. और you know what the devil will tell you. तू उधर गया था ना, प्रेयर किया ना, बस इसलिए हो गया, जा मत उधर. Now, hello, are you listening right now? There are, when you listen, go with me to 1 Kings 13. We'll close fast. चले जाएंगे पहले राजाओं की पुस्तक 13वां 1 Kings 13. Hurry up. Many people, they don't have a child. देखिए बहुत सारे लोगों को देखिए बच्चे नहीं है. Hello. Yes, they don't have to bring a child. It's very difficult. जी हाँ, बच्चे पैदा करने के लिए बहुत मुश्किल होता है. And then they say नहीं आजकल का खाना ऐसा है, आजकल का जीना ऐसा है. No sir. सारा भी वैसी थी ना. Hello.
Yeah, it's very, very, it's nothing great. Same. Devil is the same. Good news is Jesus is even the same. वो शेर है तो हमारा प्रभु सवा शेर है. सवा क्या उसको और जोड़ो. हेलो, आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हैं इस वक्त? यस. तो ऐसा मत बोलो कि अभी कहाँ खाना है पीना है. पहले भी ऐसे ही था. फर्स्ट किंग्स चैप्टर 13. पहले राजाओं की पुस्तक 13वां Then he अध्याय. cried out against the altar by the word of the Lord. और देखिए वचन में लिखा है, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध पुकारा. So there was an evil altar that Jeroboam had raised. तो देखते हैं कि शैतानी वेदी जो यरोबाम ने खड़ा किया था, So what did he do? तो क्या किया उसने? He cried out against the altar by the word of the Lord. Everyone say by the word of the Lord. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने वेदी के खिलाफ में पुकारा. Say in the name of Jesus. यीशु के नाम में Every evil altar against my life. हर एक शैतानी वेदी मेरी जिंदगी Fall down in Jesus' name. हो जाए इस वक्त. Very, very powerful. बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली. After that breaks, you have to raise an altar. You see, अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों चुना पता है? कि जहां पर भी जाता था वो प्रभु की वेदी खड़ा कर देता. कितने लोग सुन रहे हैं? सॉल क्यों राजा बनने से गिर गया? क्योंकि जहां भी जाता था वो वेदी खड़ा ही नहीं करता, खुद की मूर्ति बनाता था. देखो बाइबल पढ़ो, मैं बाइबल की बातें कर रहा हूं, बाहर की बातें नहीं कर. उसने एक ऑल्टर ये बनाया. कम ऑन नाउ, हेलो. Yes, but Abraham, लेकिन अब्राहम he raised up altars. उसे वेदियों को खड़ा किया. He was an altar builder. वो वेदी बनाने वाला व्यक्ति Come था. on now, praise the Lord. Yeah, that is a secret, church. यही तो रहस्य रखा. Why did God restore Job? He was an altar builder. Every day he used to raise up fires to God, raise up sacrifices to God. Somebody say amen right जो now. परमेश्वर ने यूं को इतना आशीष दिया, क्योंकि देखिए वो भी वेदी बनाने वाला व्यक्ति था. हर दिन जो है हर सुबह परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया करता था. Praise the Lord. Sir, you have to confess the word against the evil altars. Otherwise, the same things will happen in your life. और इसी वजह से देखिए आपके जीवन में कि शैतानी वेदियों के खिलाफ में आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है. नहीं तो क्या होगा? चीज आपकी जिंदगी में वैसे ही चलती रहेगी. Look what it says. देखिए वचन O altar, thus says the Lord, behold a child, Joshua shall be born. Now he's prophesying. और So देखिए यहाँ पे today, घोषणा कर रहा है. we need to speak the word. That is prophetic word. He shall sacrifice. On you he shall sacrifice the priests of the high places. On you and men's bones shall be burned. Now he's speaking. Give me verse 5. Hurry up, please. अब देखिए 5वें वचन में देखेंगे. Then the altar was split apart and ashes poured out from the altar according to the sign which the man of God had spoken by the word of the Lord. और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई. अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था. Every time you speak the word, हर बार जब आप वचन बोलते हैं and that evil altars will fall in Jesus' name. और वह शैतानी वेदियां गिरेंगी यीशु के नाम कितने में. लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा जो सुन रहे हैं इस हूँ? वक्त, You need to speak. आपको बोलने की जरूरत If है. you don't speak, अगर आप नहीं बोलेंगे, your silence will permit the evil altars to operate. आपकी खामोशी जो है उन शैतानी वेदियों को इजाजत देगी कि काम करती रहे. Lift your hands and say, अपने हाथ उठा के in the name of Jesus, यीशु के नाम में every evil altar हर एक शैतानी वेदियां that is troubling my destiny जो मेरे विधान को बिगाड़ती be है, destroyed by fire in Jesus' name. आग से नाश हो जाए यीशु के नाम में. Now you need, listen sir, don't get me wrong. गलत बात समझिए. मैंने कहा ना, वेदी को फंक्शन होने के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस की जरूरत है. तो तुम पूरा वड़ा पाव मार के ठोसा वोसा मार के नहीं, ऐसा नहीं कर सकते सर. हेलो, आर यू लिसनिंग राइट नाउ? आप सुन रहे हैं इस वक्त? जब भी तुम जंग में जाते हो, हमारे जो कमांडोज हैं बड़े, उनको कितने साल का प्रशिक्षण करता है, फिर बंदूक चलाते हैं. सीधा उठ के बोले, दांत घस के बोले बंदूक चलाओ. बोले सीधी है कि उल्टी वो भी नहीं मालूम. You could get injured. देखिए आप जख्मी हो सकते हैं. That's how Christians are. ऐसे तो मसीह लोग हैं, They don't know anything. उन्हें कुछ नहीं पता. And they are trying to go for war with the stick. मारेगा लेकिन तेरे को. कोशिश कर रहे हैं लड़ाई में जंग में जाने के लिए छड़ी लेके. बाद में एक थप्पड़ खा के आता हूं, बोले अरे मैं गया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया. Hello, सुनिए, don't get me wrong. गलत मत समझिए. So please enter into fasting when you are doing this. That's why I told you it's not easy. और इसी वजह जब आप ये कर रहे हो तो मेहरबानी करें पहले उपवास में आए, क्योंकि ये आसान नहीं है. So the first thing, पहली how चीज- do you pull down evil altars? कैसे आप शैतानी वेदियों को गिराते हैं? By the word of the Lord. परमेश्वर के वचन के द्वारा. सब जन बोले by the word of the सब Lord. लोग कहें, परमेश्वर के वचन के द्वारा. One lady, she was एक there औरत. in my fasting prayer, एक औरत आई थी हमारे उपवास प्रार्थना में and she started doing this in the night, और रात में वो ये सब करने लगी. and something was not. Please forgive me what I'm saying. She was living in a wrong relationship और देखिए वो गलत अवैध संबंध में जी रही थी. in the night, रात में, full night. पूरी रात She saw bulls chasing her. She's running and running and running and running. उसने देखा कि बैल जो है वो उसका पीछा कर रहे हैं और वो भाग रही है. Next morning, of course not next morning, the next day, she met me in church. और अगले दिन ऐसा हुआ कि कलीसिया में मिली.
She says, Pastor, वो कहने लगी पास्टर पूरी रात में भाग रही थी. मैं बोला क्या हुआ? बोले आपने जो सिखाया वो मैंने किया, लेकिन ऐसे सांड बड़े बड़े बुल समझते हो, से मेरे पीछे भाग रहे हैं और मैं भाग रही हूँ और सुबह उठ की तो शी वॉज वेरी टायर्ड. सुबह उठी तो बहुत ही थकी हुई थी. मैंने बोला सिस्टर सुनिए, इस वक्त जब भी आप किसी मोटे आदमी सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मोटा आदमी अगर खड्डे में गिरा हुआ है, प्लीज फॉरगिव मी इफ यू आर ऑफेंडेड, ओके, अगर मोटा आदमी खड्डे में गिर रहा है और जो खींचने वाला एकदम ऐसा है, आप हंस रहे हैं, मस्त बारी बक्कम आदमी अंदर खड्डे में गिरा तो बोलते हैं रुक मैं तेरे को बचाएगा, क्या हो जाएगा? You need to be strong to pull that man out. आप खुद मजबूत होना पड़ेगा उस व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए. Otherwise, you will go inside. नहीं तो आप खुद जाएंगे अंदर. How many of you understand what I'm ये तो saying? समझ रहे हैं इस वक्त. I said, how many understanding that? To chase someone, you need to be stronger than whom you are chasing. तो देखिए किसी का पीछा करने के लिए जरूरी कि आप पहले मजबूत होए, उस व्यक्ति से ज्यादा मजबूत होना. To उसका hunt पीछा करना. someone, the hunter must have a strong weapon. और किसी का शिकार करने के देखिए उस शिकारी के पास मजबूत हथियार होना चाहिए. You go to the lion, आप जाने शेर के पास, a big babbar lion, you know, बड़े बब्बर and शेर you के पास, take one small safety pin, और एक छोटी सेफ्टी पिन लेकर and you say, I'll beat you. Oh, तुमको छुपा दूंगा. come on, hello. That is how the Christians are. ऐसे मसीह लोग होते हैं. They poke the lion, जो आते हैं सुई, and the lion wakes up, जब शेर जागता है, and then you say, मारेगा तेरे को मैं. फिर लोग कहते हैं मारूंगा तुम्हें. The lion says, ठीक है रुक, तेरे को दिखाता हूं मैं. That's how Christians are. ऐसे ही होते हैं मसीह लोग. But when you are in the Lord, लेकिन जब आप प्रभु में होते when हैं, your life is right with जब God, आपकी जिंदगी प्रभु का you receive the grace of God. आप परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं. That's why David, an ordinary boy, could kill Goliath. Somebody say hallelujah. हर से लड़का जो है गोलियत को मार सका. कहे You, हालेलुया. come on, somebody, are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त. When you walk, say, God, you are my Lord. That time God says, don't worry. Now you are not alone. The anointing of God will be upon you. जब आप जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरा प्रभु परमेश्वर, तो परमेश्वर कहेगा ठहर जाओ, अब तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होगा. Paul was only 5 feet. पौलुस जो है सिर्फ 5 फीट का था. But that fellow, the Bible says, he was amazingly powerful. लेकिन बाइबल कहती है कि देखिए उसे बड़े सामर्थ्यशाली तौर पे इस्तेमाल किया गया. Come on, are you receiving this word right now? सुन रहे हैं इस वक्त. So today, What? make sure, before you engage in this prayers, make sure your life is right with God. इस प्रार्थना मुंह में में शामिल होने तंबाकू से चबा पहले के on break evil altars, तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा फिर. बाद में मत बोल. No, please listen to me. Huh? सुनिए ध्यान से. हाँ, I warn you. आपको चेतावनी देते हैं. 21 days में मैंने नहीं बोला, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज में आप घुस रहे हो ना, या तो ये तो आप तोड़ के आप खुद सेफ हो सकते हैं और आप जो आने वाली पीढ़ी वो भी सेफ हो जाएगी. लेकिन अगर आप से अबर बराबर नहीं है तो सर प्रार्थना मत करो, जाके तंबाकू चबा के आ जाओ वापस. I'm telling you, कहने आपसे it's very very powerful. ये बहुत ही ज्यादा शामशाली है. How many feel listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त. जो छुरी जो चीजें काटती है, खाना बनाती है, वो छुरी तुमको भी काट सकती है. बाजू वाले को छुरी यूज करना सीखो. अपने बड़े से बोले छुरी किचन में. हाँ, किचन में. हाँ, नहीं तब बोलेंगे भाई ने बोला ऐसा. Praise the Lord. बोले प्रभु से हो. So first thing is you speak. Everyone says speak. तो पहली चीज यह है कि आपको बोलना है. सभी लोग कहें बोलना The है. second thing, दूसरी चीज, when you break any evil altar जब भी आप कोई शैतानी वेदी को तोड़ते हैं through prayer, प्रार्थना के जरिए, you have to build another altar. तो जरूरी कि आपको दूसरी एक वेदी को भी बनाना होगा. Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया. Come on, everybody say hallelujah. सब लोग कहे हालेलुया. कभी मन करेगा तो प्रेयर करो, मन नहीं करेगा तो छोड़ो. That should be built up. उसे बनाया जाना चाहिए. Your Bible reading. आपका बाइबल अध्ययन. हाँ, किधर तो बाइबल गिरा हुआ है, देखना पड़ेगा अभी किधर है. हेलो, सुन रहे मैं क्या बोल रहा. हाँ, किधर तो न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है थोड़ा. It has to come out. उसे बाहर आना चाहिए. फास्टिंग कब किया था, फास्टिंग याद नहीं. यीशु बोले तो डोसा बाहर आता है. So you have to repair your relationship with God. तो परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है उसको आपको मरम्मत करना होगा. That it means how it is. देखिए इसी का मतलब यही है. How many of you following me right ये तो now? समझ रहे हैं इस वक्त. So before you, when you break down the altar of the devil, तो जब आप शैतान की वेदी को गिराते हैं, you need to build a godly altar. तो आपको परमेश्वर रूपी वेदी बनाना होगा. Somebody say praise the Lord. चले कहे प्रभु की स्तुति हो. There was a Amma. I always speak about her. अम्मा के बारे में हमेशा बताते हैं. Many years back, I went to a place called Tiruvittur in Chennai. कई साल पहले चेन्नई में एक जगह पे गए Anybody थे. from Chennai over here? कोई चेन्नई से है यहाँ. All right. Many years back. And listen to this. सुनिए इसे. I was climbing the stairs. और सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे. And I looked at that small woman. एक छोटी कद की. And I said, told the pastor, who is that? और पासवान जी से उन्होंने पूछे कि ये कौन है. She said, that is my mother. तो वो पासवान जी कहने लगे कि ये मेरी माँ है.
I said, I sense the presence of God. मैंने कहा मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? ध्यान से सुने इस वक्त. Then he shared with me the story of his mother. फिर उसके बाद अपनी माँ की कहानी वो बताने लगे। There are 4 brothers. 4 भाई थे। All of one is a pastor, one is a engineer, doctor, and I don't know, politician, एक who I don't know. doctor, Some big fellows they are. पासवान इंजीनियर पता है क्या Saying, बड़े-बड़े Pastor, लोग do थे। you know? और उन्होंने कहा कि पासवान He क्या says, when I was born, जब मेरा जन्म हुआ था and my 2 brothers, और मेरे 2 भाई we were small. हम छोटे-छोटे थे And other brother was in mama's womb. और दूसरा सबसे छोटा जो है माँ के गर्भ में My था। father died. मेरे पिताजी का देहांत हुआ And the people, the in-laws of my mother, they threw her out on the road. और मेरे माँ के सभी रिश्तेदार जो थे उन्होंने उसको निकाल दिया। Everything they took from her. सब कुछ उनसे हड़प लिया उन्होंने And she was a beautiful woman. She was on the road in the streets. और एकदम खूबसूरत सी औरत लेकिन सड़क पर आ गई थी वो। He's saying, we all 3 brothers, और we अभी did उन्होंने not कहा have food to eat. कि हम तीनों भाई हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं था। We would stay in the pipe on the road. Pipe. सड़क पर का जो पाइप होता है उसमें हम जाके रहते थे। Construction का pipe होता है ना? We used to stay on the road, pastor. हम जाकर उस सड़क पे जाके उसमें रहते थे। Saying, my mother, लेकिन मेरी माँ in the pipe, she would pray. उस पाइप में भी वो प्रार्थना करती Hello. She would pray. वो प्रार्थना करती थी। Say, हम लोग जब सोते थे, तो एक हाथ ऐसा आता था हमारे सर पर. मैं हमेशा बोलता ना, भाजी का हाथ, इसका हाथ, उसका हाथ. सर, ये स्टोरी नहीं है, सच है. इसे हमारी माँ जो है ना, पूरा दिन किसी की सिलाई करती थी. पुरुष लोग क्या क्या नहीं बोलते थे. हमारे साथ आ जाओ, तू इधर क्या कर रही है, ऐसा वैसा. लेकिन मेरी माँ बोलता है, हम लोगों ने देखा उसकी जिंदगी. जवान औरत थी, लेकिन बोलता है अपने आप को उसने संभाला. हेलो. Yes, I salute such women. ऐसी महिलाओं को सलाम करते I salute such mothers. ऐसी माओं को सलाम करते I'm telling you. She said she would pray. वो प्रार्थना करती थी। And then she gave birth. फिर उसके बाद जन्म दिया उसने We would take care of our brother. और हम हमारे छोटे भाई All day, but night she would pray. लेकिन रात को वो प्रार्थना करती He's थी। saying उसका हाथ साफ नहीं रहता था, लेकिन अच्छा लगता था जब माँ का हाथ हमारे सर पे आता है. 2-3 घंटे प्रार्थना करती थी और सोती थी बेचारी. वो बोलते शरीर से वो दुबली हो गई, लेकिन अंदर वो जायंट थी. मिनिस्ट्री शुरू हो गई बोलता है वो. और जब वो खड़ी रहती थी, I've seen it. वो खड़ी रहती थी, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी. In the night, night prayer was there. रात की प्रार्थना हो रही थी। I finished praying. इन्होंने प्रार्थना समाप्त की है। Things happened little bit. Yeah, थोड़ा बहुत चीजें हुई। thank God for that. परमेश्वर का धन्यवाद इसके लिए। And she came. जब वो आ There were people in the back. They were tied with ropes. और पीछे से लोग थे जिनको रस्सियों से बांध के रखा गया था। She was delivered. उनको छुटकारा मिलने लगा। Hello, are you listening right now? In the end, she blessed me. और आखिर में उन्होंने इनको Of आशीष course, I didn't understand Tamil. I don't understand Tamil. So one pastor was translating for me. भाषा ने समझ में नहीं आ रही थी। एक पासवान जी इनके लिए अनुवाद करने लगे। But you see, she said one thing. She says, उन्होंने build your altar, build your relationship with God. She told me as saying, son, build your altar, build your relationship with God. उन्होंने कहा बेटे अपनी वेदी को बनाओ, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत कायम करो। How many of you following me, church? मुझे समझ रहे हैं? I said, how many of you following me? Today you may be broken. शायद हो सकता है आज आप टूटे You हुए are saying nothing is happening in my life. और आप कह रहे हैं मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। You must build your altar. जरूरी कि आप अपनी वेदी को You may बनाएं। not have money, आपके पास पैसे but नहीं, I have seen how people, God raised up such people. और इन्होंने देखे ऐसे लोगों को जिनको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है। Don't wait for a quick fix. बोले यहाँ से पैसा आएगा तो मेरा काम हो जाएगा. सर वो पैसा आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, पैसा आएगा, लेकिन जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी फुर भी हो सकता है, क्योंकि आप उसे संभालने नहीं जानते. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? Easy come, easy go. But if your relationship with God is right, I believe in prosperity. देखिए समृद्धि में पूरा यकीन मानते हैं। I believe in prosperity. समृद्धि में पूरा कोई लोग प्रचार करते हैं नहीं, prosperity is not from God. खुद पैसा इतना अगर prosperity against हो, तुम्हारे जेब में पैसा क्यों लेके घूमते हो रे? गाड़ी में क्यों घूमते हो? डाल दो ना किसी चर्च वर्च में, ऑर्फनेज में डाल दो. नहीं डालेंगे, जमा करके रखा है. बाद में बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. और कोई लोग सुन, prosperity is from God, but your first thing must be your relationship with God. समृद्धि देखिए परमेश्वर की ओर से है, लेकिन आपकी पहली चीज परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस Our वक्त? children became engineers, children became doctors. I don't know, the fourth son was a pastor, but I don't know, the third son, who big fellows. बड़े बड़े मशहूर लोग बने वो। One woman एक औरत building her relationship or altar with God. परमेश्वर के साथ जो अपना संबंध मजबूत Sir, उसने वेदी को बनाई। मैं आपको बहकाना नहीं चाहता हूं. I want to tell you the truth. What you do today जो आज आप करते हैं will impact
the future generations. आने वाली भविष्य की पीढ़ी पर असर डालेगी. Come on, somebody. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Jacob built an altar for God. He said, God, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू आशीष नहीं देगा. और उसके 12 संतान हुए और वो आज उस देश का नाम इजराइल है. क्या नहीं आ गए उन लोगों के खिलाफ, क्या नहीं हुआ उन लोगों के खिलाफ, लेकिन आज भी वो खड़ा है. That is the power of an altar. यही तो सामर्थ एक वेदी की. That is the power of an altar. यही तो सामर्थ एक वेदी Today, की. will you listen to this prophetic word? आज इस भविष्यता वचन को आप सुनेंगे. Don't say I am poor. ऐसा मत कह मैं गरीब हूँ. God will break that power of the altar. परमेश्वर उस शैतानी वेदी की शक्ति I तोड़ेगा. prophesy because of the altar you have built, good things will be attracted in your life. अब भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि In जो the परमेश्वर name की of वेदी आपने Jesus. बनाए, अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आएगी. Not only today, सिर्फ आज ही नहीं, but every day of your life. लेकिन आपकी जिंदगी हर एक दिन. I want to tell every young woman, अरे नौजवान महिला से कहना चाहते get हैं, up every day. हर दिन उठिएगा Oh, and be in the presence of और God. परमेश्वर उपस्थिति में जाए. Don't fall for those lallus who said, I love you, sweetie. Actually, वो सिर्फ तुम्हारा माल चाहते हैं. तुम्हारे पास, बहुत सुनिए, मैं बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो. लड़कियां बेचारी जो है ना, सुनिए, कोई लड़के भी हैं अच्छे, लड़कियां बेचारी बहुत मेहनती होती हैं. हेलो, सुन रहे हो ना? वो अपना कुछ भी जुगाड़ करके अपना जिंदगी बना लेती हैं, बहुत काम करती हैं, मैंने देखा है. और फिर कोई लल्लू राम आ जाता है और फिर वो उनके साथ में घुस जाती है. I'm telling you, I know certain people in abroad. I don't want to take their names. विदेश में कुछ ऐसे लोग जानते हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहते. They want to gain the citizenship of that country. और देखिए उस देश की नागरिकता वो पाना चाहते हैं. बोलना, मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूं. नहीं सुनेंगे वो लोग, नहीं सुनेंगे. नहीं पास्टर, प्रभु ने बात की है, एक थप्पड़ मारूंगा ना उल्टे हाथ का. Because they don't have the relationship with God. वो लड़के उनको यूज करते हैं क्योंकि उनको वो नागरिकता हासिल करनी है. हेलो हेलो, नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे ना? This is how it happens. Those women, they love God, but because उनको अभी कोई चाहिए, कुछ कुछ बोलती हैं, प्रेयर किया हमने, वैसा किया हमने. अरे जा रहे. Yes, sister. I want to tell you. आप लोगों से I कहना want to चाहते tell all the young girls. हैं, सभी नौजवान लड़कियों से कहना चाहते हैं, God will give you a good man. परमेश्वर आपको अच्छा भी देगा. I want to tell all the boys. सभी लड़कों से कहना चाहते हैं, ये सब तितली चमक दमक के पीछे मत पड़ो. परमेश्वर आपको सही आदमी देगा. Receive it. I tell you, as a man of God, as your elder brother in the Lord Jesus Christ, receive it. परमेश्वर जन के रूप में, Receive भाई it. के रूप में कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में ग्रहण कर और जिन लीजिए. लोगों की शादियां टूटने पर है, मैं आपको prophetic word देता हूं. सुनिए इस वक्त, as a man of God, परमेश्वर आपके घर को उठाएगा. Receive कीजिए इस वक्त. Hallelujah. जो तुमने प्रार्थना, जो तुमने उपवास उस वेदी में डाले हैं, प्रभु कदापि उसे नहीं भूलेगा. This is a word from the Lord. ये प्रभु के ओर से वचन है. God, I call heaven and earth witness today. The Lord will build your home. स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी मानते हुए कहते हैं, Don't परमेश्वर forsake घर the बनेगा. Lord. Turn to the Lord, all of you. आप सभी प्रभु की ओर मुड़ जाएं. Turn to Him उसके ओर मुड़ जाएं. with all your heart, अपने पूरे दिल से, with all you got. जो कुछ भी आपके पास Today है, decide आज फैसला लीजिए. in the name of Jesus. यीशु के नाम में. आंखों पे विश्वास मत कीजिए. बोले मैंने इतना प्रार्थना की, कुछ नहीं हो रहा. शैतान झूठा है, क्योंकि आत्मा में कुछ बदल रहा है. Raise your hand, raise your hand, raise your hand. हाथ उठाएं. शैतान तुमको बताएगा, देख तू प्रार्थना करता, कुछ नहीं हो रहा. अरे शैतान झूठे, वो लोग आ रहे हैं. हालेलुया. जब प्रोडिगल सन आ रहा था, उड़ाव पुत्र आ रहा था, उसके कपड़े बास मार रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते लोग, वो शक्ल से गुंडा मवाली लग रहा था, लेकिन वो पिता के घर की ओर आ रहा था. He was coming to the Father's house. वो पिता के घर की ओर आ रहा Today था. I want to tell you, आज आपसे कहना चाहता हूं, don't commit suicide. खुदकुशी मत करिएगा. Don't leave the Lord. प्रभु को मत छोड़ना. Rise up in the name of Jesus यीशु के नाम में ऊंचा उठे and say, oh Lord, और कहे, हे प्रभु, I will worship you. मैं तेरी आराधना I करूंगा. will thank you, Lord. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा. I will प्रभु. give you praise. मैं तेरी स्तुति मैं करूंगा. गरीब हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं. हालेलुया. मैं तुझे जानता हूं, तू विश्वास योग्य है.
हालेलुया, बोलिए जोर से, तू विश्वास योग्य है प्रभु। जोर से बोलिए, प्रभु तू विश्वास योग्य है। हम विश्वासघात कर सकते हैं लेकिन प्रभु विश्वासघात नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट इज सेइंग टू द चर्च ऑफ जीसस। रिसीव दिस प्रोफेटिक वर्ड। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूं कि तुम आराधना करोगे 1 मिनट के लिए और खुदा तुमको लाखों रुपया देगा, नहीं, लेकिन खुदा कहता है कि उसकी तुम आराधना करोगे तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रिसीविंग राइट नाउ? ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। यू आर बिल्डिंग एन ऑल्टर। ये प्रभु का वचन है, आप वेदी को बांध रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। Are you listening right now? सुन रहे इस वक्त। The Lord has spoken on behalf of your spirit. Honor my words. अब तेरी आत्मा के पक्ष में उन्होंने बोला है इनके Now वचनों the का anointing आदर is कर। here. अब अभिषेक यहाँ है। Praise the Lord. Don't worry, mother, about your daughter. Don't worry about your children. These children will rise. अपने बच्चे का फिक्र मत करें। These children will rise. जिंदगी में ऊंचा उसके उठेंगे। पीछे पढ़ो। Hallelujah. वो प्रॉपर्टी आपके किताब में परमेश्वर ने लिखी कि इतना स्क्वायर फीट इसका है। कोई माइका लाल तेरी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। सुने इस वक्त, जो तुम्हारा पैसा लिखा खुदा ने, वो हर एक पाए आएगा। It will come. It will come. होगा In the name of Jesus. यीशु के नाम में।